Check out Ignited Minds Tutorial's latest video on some basic concepts of chemistry, where they cover previous year's questions from IIT, NET, and CET exams. This video is a valuable resource for anyone preparing for these competitive exams and seeking to strengthen their understanding of fundamental concepts in chemistry. In the video, the experts at Ignited Minds Tutorials provide detailed explanations and insights into key topics such as atomic structure, chemical bonding, states of matter, and more. By going through the PYQs, previous year's questions, viewers can gain a better understanding of the types of questions that are commonly asked in these exams and learn how to approach them effectively. This resource is particularly useful for students looking to test their knowledge and improve their problem-solving skills in chemistry by familiarizing themselves with the patterns and concepts of previous years' questions. Students can gain confidence and enhance their preparation strategies for the upcoming exams. Whether you are preparing for IIT, NET, CET, or any other competitive exam, this video on some basic concepts of chemistry is a must-watch for all aspiring students. Ignited Minds Tutorial's commitment to providing high-quality educational content makes this video a valuable tool for exam preparation. Okay, people, we will start with chemistry, some basic concepts में. ओहो, सवाल है भाई साहब क्या? In the standardization of Na2S2O3 by potassium dichromate by iodometry, the equivalent weight. Confusing है, लेकिन देखो जहां पे भी पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हो रहा है, सिंपल सा इक्वेशन याद रखो. देखो ये K2 को साथ में लेके मत चला करो वरना ज्यादा हो जाएगा. ये मतलब देखो कैसा है, ये K2Cr2O7 है. K2 को सेपरेट कर दोगे तो ये क्या बनाएगा बोलो? Cr2O7 2 माइनस बनाएगा. भाई साहब K क्या है? +1, तो +2 तुमने माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली जो दूसरा वाला आयन है वो Cr2O7 2 माइनस हो जाएगा. हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट का या क्रोमेट का भाई साहब जब भी रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हो जाएगा Cr3+, ये होगा Cr3+. ठीक है, फटाफट से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ही आपका क्या हो जाएगा? n फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया कितना? 2x प्लस यहाँ पे हो गया 7 × -2 ऑक्सीजन का. भाई साहब इसका x पकड़ा हमने, इसका तो -2 होता ही है ऑक्सीडेशन नंबर. तो 2x प्लस 7 × -2 दैट्स गोइंग टू बी -2. सो दिस इज 2x -14 is equal to -2. So 2x is equal to -2 plus 14, that's going to be 12. So 2x is equal to 12, therefore x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 plus 6 बेसिकली. तो यहाँ पे आ गया भाई साहब क्रोमियम का कितना? +6. और इधर तो आपको दिख ही रहा है भाई साहब +3. ठीक है, तो एक रिएक्शन में कितने का हो रहा है भाई साहब चेंज? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इज +3. दो मॉलिक्यूल्स हैं तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 दैट इज +6. तो आपका n फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा? +6. ये आपका n फैक्टर हो गया भाई साहब. ठीक है, और इस n फैक्टर पे ही आपका इक्विवेलेंट वेट होता है. इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया भाई साहब तुम्हारा? मॉलिक्यूलर वेट इज, अच्छा ये दिया नहीं हुआ है ना. ओके, मॉलिक्यूलर वेट. ओके चलिए भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना हो गया? 6. तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6. आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है. ओके ओके ओके. द masses of oxygen which combine with a fixed mass of hydrogen to form H2O and H2O2 respectively bear the simple ratio 1. आदमी आधा किलो का 50 किलो की तुम्हारी स्ट्रेचिंग होती है भाई साहब. ओके, H2O and H2O2 respectively bear the simple ratio 1:2. The above statement illustrates which of the following laws? Law of definite composition, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law of gaseous volumes, Avogadro's law. चलो भाई साहब एकदम आसान हलवा सवाल, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है. हाँ, एक तो मारूंगा एक. Gay-Lussac's लॉ क्या बोलता है?
इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स, मतलब 22.4 लीटर्स जो आ रहा है वो वाला वहां से आ रहा है, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर्स। इसका भाई साहब एवोगाड्रोस लॉ, ईच मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23। लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन, मतलब भाई साहब अगर तुम, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, मतलब डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। लेट्स से H2O है, ये H2O भाई साहब किसी नाले का पानी हो या भाई साहब समुद्र का पानी हो या किसी पॉन्ड का पानी हो, जब तक पानी आपका क्लियर है तो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यही कॉम्बिनेशन रहेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है कि अगर एक एलिमेंट A है और ये B है और लेट्स से दूसरा कंपाउंड बन रहा है आपका A2B2, ठीक है, ये A2 है तो B कितने से कंबाइन कर रहा है यहाँ पे, 2A से, ठीक है, B इज कंबाइनिंग विथ 2A's हियर एंड यहाँ पे 2B इज कंबाइनिंग विथ 2A's, ठीक है, तो 1B इज कंबाइनिंग विथ हाउ मच, 1A है ना, इधर 1B इज कंबाइनिंग विथ 1A, तो ये वाला जो रेशियो हो जाएगा, मतलब आपका एक को आप फिक्स कर लेंगे, एक एलिमेंट को आप फिक्स कर लेंगे। यहां पे भाई साहब आप हाइड्रोजन को फिक्स कर लो, यहां पे एक ऑक्सीजन एटम है, यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम के साथ एक ऑक्सीजन एटम तो 1, ठीक है, यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम तो 2, तो 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है। व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, then if you fix the weight of one of the elements, then the other element, the ratio in which they would combine will be a whole number ratio. That is law of multiple proportion. ये आपका law of multiple proportion है। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। What is the formula of anhydrous NDA? अच्छा NDA आई नहीं, अच्छा NDA नहीं आई है। ओके। What is the formula mass of anhydrous sodium carbonate? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इतने कंफ्यूजन कहां लगते हो तुम लोग। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, अरे चाचा और चाची लोग, एक होता है तुम्हारा हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब होता है जिसमें XH2O होता है मल्टीप्लिकेशन में, एंड एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, ड्राई। एनहाइड्रस मतलब कुछ नहीं, ये नहीं रहेगा। क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, एकदम लल्लू पंजू सवाल है, तुम लोग बस ये देख रहे हो कुछ तो डिफिकल्ट होगा, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो क्या, Na2CO3, ठीक है, कैलकुलेट करो, ये हो गया 2 × 23 म्यू दिया हुआ ना यहाँ पे, देखो 1 कार्बन × 12 म्यू प्लस 3 × 16 म्यू, ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 46 म्यू प्लस 12 म्यू प्लस 48 म्यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 8 + 9 10 16, 4 + 1 5 6 5 + 1 6 6 + 4 10, 106 म्यू। बस यही है सवाल और कुछ नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। क्लियर? एनहाइड्रस है, एक्चुअली ये जो सॉल्ट है ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, सोडियम कार्बोनेट मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। आपका साबुन क्या होता है, साबुन को जब आप मतलब ज़्यादा करके जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसको भाई साहब खुला रख दोगे तो आप देखोगे वो गीलापन पकड़ता है ना, इट बेसिकली कैचेस मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो इसलिए वो एनहाइड्रस नहीं रह पाता है, वो हाइड्रेटेड हो जाता है। ठीक है, आप अगर वैसा वो जो रिन टिकिया होता है वो सब अगर आप रख दोगे खुले में तो वो मॉइस्चर पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया एनहाइड्रस, मतलब आपने इसको इग्नोर कर दिया है, तो सिंपल निकालना है वैसा 2 × 23, ये आपका हो गया 106 व्यू। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A sample of oxygen contains 2 isotopes of oxygen with masses 16 mu and 18 mu respectively. The proportion of these isotopes in the sample is 3:1. 3:1 का भाई साहब proportion है। What will be the average atomic mass of oxygen in this sample? चलिए एकदम लल्लू पंजू सवाल है, आप मेरे को याद होगा क्लोरीन का मास आप कैसे कैलकुलेट करते हो। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं और उनका परसेंटेज के हिसाब से आप क्या करते हो, एक क्लोरीन जो 35Cl है उसको उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके प्लस एक क्लोरीन जो 37Cl है उसको उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते हो, है ना। याद आ रहा है भाई साहब कुछ, 10th का मामला है ये, 11th का भी नहीं है, याद आ रहा है। देखो 35.5 आता है ना क्लोरीन का, तो एक होता है 75%, एक होता है 25%, तो 35 × 75/100 प्लस 25 × सॉरी अपना
37 इंटू 25/100 वो होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। यहां पे भी वही करना है भाई साहब। दिक्कत यहां पे ये है कि यहां पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, यहां पे आपको दिया हुआ है 3:1। 3:1 का परसेंटेज निकालो, क्या हो जाएगा? चाय हुई कॉफी भी पी के आया करो ना भाई साहब। नहीं है तो मेरे पास है पड़ा हुआ, किधर गया? हाँ वो पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं एकदम भाई साहब। हाँ 75-25 हो जाएगा सिंपल भाई साहब। 3 अगर नहीं समझ में आ रहा देखो 3:1 है ना भाई साहब। 3 + 1 करो कितना आ जाएगा? 4। 100 को 4 से डिवाइड करो भाई साहब, कितना आ जाएगा? 25। तो दिस विल बी 75 एंड दिस विल बी 25। सिंपल, समझ में आ रहा है? बस वही करना है। देखो ऑक्सीजन विथ मासेस 16 म्यू का हो गया भाई साहब 16 म्यू इंटू 75/100 प्लस यहां पे हो गया 18 म्यू इंटू 25/100। ठीक है, तो ये हो गया 25 3 जा 25 4 जा 4 4 जा, तो ये हो गया भाई साहब कितना? 12। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? अच्छा ये अपॉन 2 करना है भाई साहब। ओ चलिए इसको 25 1 जा 25 4 जा 25 4 ना 4 4 जा 16 4 5 जा, ठीक है 4.5 म्यू। सो दैट विल बी कितना हो गया भाई साहब आपका? 16.5 म्यू। सो दिस वाज गोइंग टू बी 16.5 म्यू। क्लियर? आर वी क्लियर? 16 म्यू इंटू 75, ये 75 और 25/100 बस इसी को डिकोड करना है आपको, सवाल में कुछ है नहीं। 75 और 25 दिया रहता है जैसे क्लोरीन में दिया रहता है 35 इंटू 75/100 एंड 37 इंटू, वही चीज यहाँ पे भी करनी है। ठीक है तो एवरेज मास वुड बी 16.5 म्यू। क्लियर? अब बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो भाई साहब एम्स का सवाल है, इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इक्वल वेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट, एकदम आसान सा सवाल, हलवा सवाल है भाई साहब। चलिए 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 फटाफट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एवोगैड्रोस नंबर। तो इसका मतलब इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये सही है। इक्वल वेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हर एक का अलग अलग मोलर वेट है। ठीक है, तो इक्वल वेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विल नॉट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। रीजन यहां पे गलत है, द रीजन इज बेसिकली रॉन्ग, दिस इज राइट। सो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज इनकरेक्टो। क्लियर? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन 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 पीपल, जल्दी जल्दी। Four gram of copper was dissolved in concentrated nitric acid. The copper nitrate thus obtained gave 5 gram of its oxide. तो ये भाई साहब कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और इस कॉपर नाइट्रेट ने क्या किया भाई साहब? कॉपर ऑक्साइड दिया हीट करने पे। ठीक है, तो पहले तो भाई साहब कॉपर था, कॉपर कितने का था? 4 ग्राम का। ठीक है, 4 ग्राम का कॉपर था जिसको आपने नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया और आपको मिला भाई साहब कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, द कॉपर नाइट्रेट 10 ऑब्टेन्ड, अभी आपने इसको हीट किया।
आपने इसको हीट किया तो आपको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड कितने का है भाई साहब, 5 ग्राम का है। ठीक है, तो भाई साहब कॉपर से कॉपर ऑक्साइड की जर्नी है, ये भाड़ में गया, इससे हमको फर्क नहीं है। ठीक है, कॉपर से नाइट्रिक एसिड में आपने डिसॉल्व किया तो बना कॉपर नाइट्रेट, इस कॉपर नाइट्रेट में आपने हीट किया तो बना कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो ओरिजिनल था वो 4 ग्राम का था, कॉपर ऑक्साइड जो आपको मिला दैट इज 5 ग्राम्स। सो हाउ मच इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन हियर, सिंपल भाई साहब, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन यहां पे कितना हो गया भाई साहब, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना, 1 ग्राम। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, 1 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम कॉपर के साथ कंबाइन कर रहा है, क्लियर। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ 4 grams ऑफ कॉपर। कैन वी से दिस पीपल हम, ठीक है, क्लियर है, ओके। आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, अरे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है 2। भाई साहब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन भाई साहब 2 इसकी वैलेंसी, तो 16 अपॉन 2, सॉरी एटॉमिक वेट 16 अपॉन 2 दैट इज 8। ठीक है, ओके। जब भी कोई कॉम्बिनेशन होता है, देखो ग्राम इक्विवेलेंट एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स में आपका एक क्लैरिटी ये है कि हमेशा अगर ए बी से कंबाइन कर रहा है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए दैट वुड बी कंबाइनिंग विद बी विल बी इक्वल, कंबाइन हो रहा है तो। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, क्लियर है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन यहां पे कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है भाई साहब, आपका हो जाएगा भाई साहब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अपन कर लो भाई साहब, यहां पे वेट कितना है ऑक्सीजन का, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम अपॉन कितना है भाई साहब आपका इक्विवेलेंट वेट 8, है ना। ठीक है, ओके। इधर कॉपर का ले लेते हैं भाई साहब, कॉपर का वेट कितना है यहाँ पे 4 ग्राम्स, इक्विवेलेंट वेट आपको कॉपर का नहीं मालूम, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट यहां पे कितना है, 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कॉपर के साथ कंबाइन कर रहा है, 4 के साथ। इधर बैठ, नहीं मुझे मालूम है तू क्या लिख रहा था, इधर बैठ जाओ। ठीक है, यहां पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 8, दिस वुड बी इक्वल टू 4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 8 into 4 दैट इज 32। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तेरम पेपलम, ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला आपने यूज किया है, जब भी आपका कोई रिएक्शन होता है number of gram equivalents of reactant A will always be equal to number of gram equivalents of reactant B, and gram equivalent is nothing but the weight of the substance upon equivalent weight। तो यहाँ पे आपने देखा कि weight upon equivalent weight 8 होता है इसका, weight upon इसका equivalent weight, that's how you are getting the equivalent weight of copper to be 32। Are we clear on this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब। What mass of calcium chloride in grams would be enough to produce 14.35 gram of AgCl? चलिए फटाफट रिएक्शन देखिए कितना होगा। कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं यहां पे, कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगा CaCl2। किसके साथ आप CaCl2 को रिएक्ट कराएंगे कि आपको AgCl मिल जाए, हाँ क्या Ag क्या, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका कैल्शियम जो है सिल्वर से बहुत हाई है, तो सिल्वर के साथ सिल्वर के किसी भी कंपोनेंट को डालो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, एनीथिंग वो डिस्प्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का मामला है, तो यहाँ पे क्या है देखो
तो यहाँ तो दिया ही हुआ है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इन ग्राम्स वुड बी एनफ टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे AgCl बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखना कि एक आपका प्रेसिपिटेट बनना ही बनना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी ऑलवेज अ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक तो Ag होना ही है, ठीक है, दूसरा आप क्या ले लो भाई साहब, नाइट्रेट ले लो, AgNO3 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, CaNO3 2, ठीक है, बैलेंसिंग हो जाए भाई साहब, बैलेंसिंग यहाँ पे NO3 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 तो लगना लाजमी है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2Ag और 2Cl है, तो 2AgCl, इज इट बैलेंस्ड। Ca इस तरफ एक, इस तरफ एक, Cl2 इस तरफ दो, इस तरफ दो, Ag हो गया भाई साहब 2, NO3 2, NO3 2 हो गया, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है। ओके ओके, चलिए भाई साहब अभी हम यहाँ पे देखते हैं CaCl2, इसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ CaCl2 बेसिकली प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ AgCl, है ना, 2 मोल ऑफ AgCl। यहाँ ही पूछा, ये देखो हाउ मच वुड बी प्रोड्यूसिंग दिस मच ऑफ AgCl, तो अपन यहाँ पे 2 मोल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बोलो, Ag इज 108, ठीक है, और Cl का होता है भाई साहब 35.5, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू ये हो गया 0.5, 8 प्लस 5 हो गया आपका 13, 3 प्लस 1 4, ठीक है, क्लियर है, अपन ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, Ca का मॉलिक्यूलर वेट दैट विल बी हाउ मच, 40 प्लस 2 इंटू 35.5, क्लोरीन का भाई साहब 35.5 और इसका भाई साहब 40, सो दिस विल बी हाउ मच, 40 प्लस 71, सो दैट विल बी 111 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम। ओके, सो व्हाट कैन वी से हियर, 2 इंटू 143.5 ग्राम, ठीक है, ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड बाय कितना, CaCl2, 111 ग्राम ऑफ CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इतना, इससे इतने से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड बाय 111 अपॉन 2 इंटू 143.5 ग्राम ऑफ CaCl2, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो अभी पूछा है आपको इतना, तो 114.35 ग्राम ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड बाय 111 इंटू 14.35 अपॉन 2 इंटू 143.5 ग्राम ऑफ CaCl2, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.1, है ना, 0.1 हो गया ये, और ये हो गया कितना, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 55.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 5.55 आ जाएगा, ठीक है, सो द ऑप्शन वुड बी ए। अरे क्लियर मन दो सोनम पेपलम, 5.55, आर बी क्लियर, क्लियर, ठीक है, समझ में आता हूं ये, ओके चलो भाई साहब, MSCT का सवाल है, हो गया राजू, ओके, व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, देखो यहां पे वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर का मास कितना होगा, 1 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर का मास कितना होगा, 20 ग्राम्स, ठीक है, 20 ग्राम्स में तुमको मोल्स निकालना है, ठीक है, वाटर का मास कितना है, H2O, मतलब हो गया तुम्हारा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, दैट इज हाउ मच, 18 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है, तो 18 ग्राम्स में भाई साहब तुम्हारे कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल,
व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स? अरे बाप रे, 18 ग्राम्स में 1 मोल। ओके 18 ग्राम्स में 1 मोल होगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब 1 ग्राम में कितना मोल होगा भाई साहब? 1/18, ये कितना होगा भाई साहब जरा प्लीज? 55.5 कुछ आएगा, कितना? नहीं नहीं निकालो ना, 0.55 कुछ आएगा। देखो 18 5 90 होता है ना, 90। तो आपका भाई साहब 5 फिर से वन आएगा 0.055। अच्छा ठीक है भाई साहब, 0.055 मोल्स हो गए ये, ठीक है। तो आपका भाई साहब 20 ग्राम्स कितना हो जाएगा? 20 मतलब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो दिस वुड बी द नंबर ऑफ मोल्स। तो कितना हो गया? 5 2 10, 5 2 10 1 11, 55 2 हो गया 110, है ना। ये आया ना 1.1 आया, हाँ 0.55 इंटू 20 1.1 आया। ओके तो ये हो गया तुम्हारा भाई साहब मोल्स, ठीक है। सो 20 ग्राम में 20 ग्राम ऑफ वाटर का कितना मोल्स हो जाएगा? 1.1 मोल्स, ठीक है। 1 मोल का भाई साहब, 1 मोल का, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल का? कितना होता है? वी नो एवोगाड्रोस लॉ से कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है, ठीक है। तो यहां पे 1.1 मोल का कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 1.1 लीटर्स। कितना आ रहा भाई साहब ये? इसमें से तो यही वाला होगा लगता है मेरे को, 22 इंटू 1 ना, यही क्लोजेस्ट है ना। दिस वुड बी द आंसर। सो दिस विल बी 24, मतलब आपका ये हो जाएगा। करने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। इसके पास कौन कहाँ से आया रे? ओके 24.89। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। ओके 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 चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। Done. 0.126 gram of an acid is needed to completely neutralize this much of NaH solution. ठीक है। देखो मैंने जैसे बोला कोई भी रिएक्शन, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस A will react with the same gram equivalents of substance B. ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? therefore ग्राम equivalent of acid will be equal to gram equivalent of base. gram equivalent of an acid will be equal to gram equivalent of base. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ओके यहां पे देखो ये एसिड दिया हुआ है आपको, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट भाई साहब होता है क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? 0.126 एसिड का वेट हो गया, और यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड, यहां पे यही पूछा है आपसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। राइट हैंड साइड में आते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अभी यहां पे बेस आपको दिया हुआ है क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ओके लेट्स सी हियर। ओके तो अपन पहले इसको देखते हैं भाई साहब। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 0.1 नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मेलिटी, और कितना है? 20 मिलीलीटर, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई साहब? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये होता है नॉर्मेलिटी, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का
सोडियम हाइड्रोक्साइड का भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट, ये हो गया आपका ग्राम इक्वलेंट। वॉल्यूम कितना है भाई साहब आपका 20 मिलीलीटर, ये वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए, तो लीटर में कितना हो जाएगा 20/1000। समझ में आता पीपलम, ठीक है, कैंसलम कैंसलम, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH, ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH अपॉन ये कितना हो गया भाई साहब आपका 0.02 इज इक्वल टू 0.1। सो ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH, this will be equal to 2123 0.002, ठीक है, ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH will be equal to 2, 1, 2 और 3, तो ये 0.002 हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ इक्वलेंट वेट, तो यहाँ पे ग्राम इक्वलेंट ऑफ द एसिड कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH, तो ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू हाउ मच 0.002, है ना, ओके। तो इक्वलेंट वेट ऑफ एसिड विल बी, इक्वलेंट वेट ऑफ एसिड बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी 0.126 अपॉन 0.002, तो ये हो गया आपका भाई साहब 126/2, दैट इज 43, नहीं 63, 126/2 63, करेक्ट, ओके। सो दिस वुड बी दी आंसर। वाह, समझ में आता हम पीपलम, ठीक है। तो आपका ग्राम इक्विवेलेंस का यही एक एडवांटेज है कि हमेशा किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होंगे उनमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, ओके ओके ओके। एक रिएक्शन दिया हुआ है, फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम परमैग्नेट है +8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स K प्लस Mn2 प्लस 4H2O। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? भाई साहब देखो सिंपल है, मैं आपको पहले भी कल भी बोल चुका हूं, पोटेशियम परमैग्नेट के 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं पोटेशियम परमैग्नेट के। एक होता है भाई साहब इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम परमैग्नेट का इन एसिडिक मीडियम में, देखो ये पूरा इसको साथ में लेकर नहीं चलना है, आप सीधा भाई साहब ले लो MnO4-, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होगा, MnO4-, ये क्या बनाएगा Mn2+, है ना। अभी आते हैं भाई साहब इन न्यूट्रल मीडियम, ये क्या हो जाएगा भाई साहब MnO4-, ये क्या बनाएगा भाई साहब आपका MnO2, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, ओके। और फिर लास्टली हम आते हैं भाई साहब किसमें, इन बेसिक मीडियम। बस इतना याद रखो, आप सारे सवाल पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे MnO4- भाई साहब ये क्या बनाएगा आपका MnO4-, ठीक है, MnO4-, क्लियर है, क्लियर। तो भाई साहब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो MnO4 का अगर हम देखें, MnO4- का कितना होगा, देखो x + 4 × -2 इज इक्वल टू -1, तो x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8, दैट इज बेसिकली 7, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब +7, तो सब में भाई साहब +7 होगा, है ना, यहाँ पे +7 होगा, इधर कितना हो गया बोलो +2, तो आपका n फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा 7 और 2 मतलब हो गया आपका 5, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा बोलो MnO2 है, तो यहाँ पे हो गया x + 2 × -2 is equal to 0, that will be x - 4 is equal to 0, that will be x is equal to +4, ठीक है, तो ये हो गया आपका +4। इस रिएक्शन के लिए आपका n फैक्टर हो गया भाई साहब 3, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा बोलो MnO4 है, तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे ले लिया x Mn का वैल्यू और 4 × -2 is equal to -2, तो x - 8 is equal to -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 + 8, दैट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब +6, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये आपको बेसिकली याद रखना है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इस तरह से चेंज होते हैं, और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने पे आपका n फैक्टर होता है। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पे निकालना पड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर दैट इज 5। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें यहां पे क्या हो रहा है, देखो आपका KMnO4 है, क्या बना रहा है Mn2+, यही है देखो यहां पे, बाबा किधर चले गए भाई साहब तुम, ओके MnO4 Mn2+ बना रहा है, मतलब आपका इक्विवेलेंट वेट बाई 5। और इस चीज का पुष्टिकरण कौन कर रहा है भाई साहब, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, यही 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके एन फैक्टर है। ठीक है, इट इज बेसिकली कंफर्मिंग द सेम प्रोसेस। ठीक है, इतने बड़े इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ यहां पे दिया रहता कि एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट का भाई साहब क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, इट विल बी क्लियरली पोटेशियम पर मैग्नेट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। इस तरह से जाओ तो भी तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, और इस तरह से जाओ तो भी तुम्हारा भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 का चेंज आ रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहां पे KMnO4 इधर K1 इधर K1, आपको देखना है चार्जेस वाइज बैलेंस्ड है कि नहीं। इसको कैसे बैलेंस करते हैं, देखो अगर आप इस इक्वेशन के हिसाब से चल रहे हो तो ये KMnO4 है। ठीक है, ये भाई साहब क्या बना रहा है, यहां पे बनेगा आपका Mn2+। ठीक है, Mn2+ बनना ही बनना है एसिडिक मीडियम में। देखो अगर ये नहीं दिया रहता तो कैसे करोगे, KMnO4 का भाई साहब Mn2+, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब K से सेपरेट हो गया ये, तो ये हो गया K+। ठीक है, ओके, एसिडिक मीडियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, इधर आपका क्या बनेगा H2O बनेगा, इधर आप क्या ऐड करोगे, H ऐड करोगे भाई साहब। ठीक है, इधर आप H ऐड करोगे, H कितना ही ऐड करोगे, देखो यहां पे 4 है तो कम से कम तुमको यहां पे क्या लगेगा 4H2O बनेगा। 4 ऑक्सीजन को तुम एडजस्ट करोगे 8 हाइड्रोजन एटम से, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे आपका 8H+ आ गया। ठीक है, 8H+ आ गया। अभी तुम कैसे बैलेंस करोगे, देखो यहां पे तुम्हारा टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, देखो यहां पे Mn2+ है, यहां पे K+ है, तो यहां पे हो गया 2+ और ये हो गया 3 हो गया इधर। ठीक है, इधर कितना है भाई साहब 8+ है, और इधर कितना है भाई साहब 3+ है, तो तुम मतलब कितने से इसको बैलेंस करोगे भाई साहब, देखो यहाँ पे 8+ है ना, और इधर पे कितना है 3+ है, तो मतलब इधर से तुम -5 करोगे तब जाकर ये होगा, मतलब यहाँ पे तुम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे। इसी चीज को अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे कि भाई साहब यहाँ पे MnO4 है, कोई दिक्कत नहीं है, MnO4- है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई साहब आपका Mn2+ आ रहा है। ठीक है, तो हमको मालूम है यहाँ पे MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था 7, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका +2, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड करना बनता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए भाई साहब। अभी क्या करना है, इस माइनस को गायब करो और यहाँ पे डाल दो K, तो ये हो गया आपका KMnO4। ठीक है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, इधर एक K+ आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब कर लो भाई साहब, अभी आपको सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लाओगे और हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट कैसे ही पूरे करोगे भाई साहब, यहाँ पे 4H2O तो आपको डालना ही डालना है, बस ये हो गया आपका 8H। तो कैसे भी करके जाओ आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे एन फैक्टर तुम्हारा कितना आया है 5। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट पीपल, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू equivalent weight of potassium per magnet is going to be equal to molecular weight of potassium per magnet upon n factor which in this case is 5। ठीक है, तो molecular weight of potassium per magnet भाई साहब कितना है दिया हुआ यहाँ पे 158 upon 5, so that's going to be 5 3s are 15, हाँ 5 1s are 5 और 5 6s are 30, 31.6 आ गया ये। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। समझ में आया तुम? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इस सवाल को करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके, सल्फर फॉर्म्स क्लोराइड्स। देखो सल्फर के 2 क्लोराइड्स बनते हैं, ये सब कहें, सल्फर के 2 क्लोराइड्स बनते हैं, एक हो गया भाई साहब आपका H2Cl2 और दूसरा क्लोराइड है आपका SCl2।
ठीक है, देयर टू क्लोराइड्स ऑफ सल्फर S2Cl2 एंड SCl2। द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर SCl2 का मोबाइल देख लो, द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर SCl2 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर, बोला भाई साहब। देखो यहां पे क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सारी चीजें हैं, अपॉन वैलेंसी बोल सकते हैं कि नहीं, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी बोल सकते हैं। यहाँ पे वैलेंसी इसकी कितनी है, यहाँ पे भाई देख लो ना, यहाँ पे S है और Cl है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 होना जरूरी है, तभी जाकर तो भाई साहब क्या हो जाएगा, SCl2 बनेगा। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी है इसकी, तो वैलेंसी भी हो सकता है, एन फैक्टर भी हो सकता है, एसिडिटी ऑफ अ बेस हो सकता है, बेसिसिटी ऑफ अ एसिड हो सकता है, ये सारे तमाम चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर इज हाउ मच, 32 अपॉन इट्स वैलेंसी इन दिस केस इज 2, so this will be how much, 16 equivalent mass of sulfur is basically यहाँ पे 16, this is basically 16, clear, are we clear on this one people, okay। KMnO4 potassium permanganate reacts with ferrous sulfate according to the following equation, ठीक है, ये भाई साहब आपका ferrous sulfate के साथ रिएक्शन है। अगेन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO4 क्या बना रहा है, MnO4 Mn2+ बना रहा है तो एसिडिक मीडियम है, MnO4 भाई साहब MnO2 बना रहा है तो न्यूट्रल मीडियम है, MnO4 अगर आपका भाई साहब MnO4 2- बना रहा है तो बेसिक मीडियम है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हो रहा है ये, ठीक है। क्या पूछा यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हियर 10 मिलीलीटर ऑफ दिस KMnO4 इज इक्वल टू हाउ मच, ओके। तो वही है भाई साहब, देखो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट, है ना भाई साहब। ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस सल्फेट में रिएक्शन हो रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 will be equal to gram equivalent of FeSO4, clear है people, okay। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा भाई साहब इसका, दिस विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 अपॉन भाई साहब क्या इसका एन फैक्टर यहां पे कितना है बोलो, 5। यहां पे या तो ऐसे देख लो भाई साहब, यहां पे 1 मोल है KMnO4 का, वो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, FeSO4 5 के साथ, है ना, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विथ कितना है बोलो, 5 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, कैन वी से दिस भाई साहब, दिया ही हुआ है आपको इक्वेशन, 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विथ 5 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो पहले तो भाई साहब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये 10 मिलीलीटर ऑफ 0.mn ये कितना मोल्स होगा। देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है बोलो, 0.1, समझ में आ रहा है 0.1, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स ये कितना है 10 लीटर्स को आप भाई साहब 10/1000 कर लो, नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसका निकाल रहे हो यहाँ पे तुम, KMnO4 का, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी, ये कैंसिल 0.01 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, this is going to be how much, 0.1, so number of moles of potassium permanganate, this is going to be how much, 0.1 into 0.01, so that is going to be 0.001, ठीक है। या अपन इसको 1 into 10⁻³ भी लिख सकते हैं, 1 into 10⁻³, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद 5 मोल्स, तो अब बताओ यहाँ पे 1 मतलब 1 into 10⁻³ moles of potassium permanganate will react with how much, 5 into 10⁻³ moles of ferrous sulfate, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। तो तुम्हारा अभी भाई साहब यहाँ पे ये तो तय है कि तो तुम्हारा जितना भी लग रहा है यहाँ पे
दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ FeSO4। अभी ऑप्शंस पे आओ, देखो ऑप्शंस पे सब में देखो 0.1 मोल है मोलारिटी, है ना। तुमको भाई साहब सिर्फ ये देखना है कि कितना वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। मोलारिटी क्या होती है, अगेन मोलारिटी देखो क्या होती है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अभी हम देखते हैं भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना FeSO4 का, ठीक है, FeSO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलारिटी कितनी दी हुई है 0.1, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाल लिया है इतना, है ना, नंबर ऑफ मोल्स तुमने इतना निकाला हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अभी तुमको वॉल्यूम निकालना है इन लीटर्स, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 1/10, so that will be 5 into 10⁻² वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ये 5 इंटू 10⁻² लीटर्स हो गया ना, ये सब मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो अगर मुझे इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका मिलीलीटर्स, तो दैट विल बी हाउ मच 5 इंटू 10 मिलीलीटर्स, so that will be 50 मिलीलीटर्स। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 50 मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 m FeSO4। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। What is the mass of precipitate formed when 50 milliliter of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 milliliter of 5.8% of NaCl solution? तो भाई साहब पहले अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन अगर आप देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, AgNO3 है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, सोडियम नाइट्रेट, दिस इज गोइंग टू गिव यू सोडियम नाइट्रेट, क्या हो गया, एसी में से कहां गिरा, ओके, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। AgCl आपका भाई साहब हो गया प्रेसिपिटेट। तो यहां पे 50 मिलीलीटर, तो ये आपका सर देखो, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड, सोडियम दोनों तरफ है, नाइट्रेट दोनों तरफ है, सिल्वर दोनों तरफ है, क्लोराइड एब्सोल्युटली परफेक्टली बैलेंस्ड, ओके। 16.9% सोल्यूशन। अभी देखो यहां पे इसका मास कितना हो जाएगा, देखो व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, मतलब आपको यहां पे मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 मिलीलीटर ऑफ दिस, अच्छा तो यहां पे भाई साहब 1 मोल ऑफ AgNO3 reacts with 1 mole of NaCl to give 1 mole of silver chloride। क्या ये समझ में आ रहा है, give 1 mole of sodium nitrate as well, ठीक है, 1 mole of sodium nitrate, 1 mole of AgNO3 plus 1 mole of NaCl will be 1 mole of NaNO3 plus 1 mole of AgCl। Are we clear on this one people? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपन मोल्स निकालते हैं, ठीक है, सिल्वर, तो मोल्स निकालने के लिए पहले तुमको वेट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का देख लो, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट तुमको कितना दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट इज 16.9% ऑफ 50 ml, ठीक है। देखो पहली बात तो 16.9% मतलब क्या होता है, मतलब 100 ml में तुम्हारा जो वेट है वो है 16.9 ग्राम्स, इसका मतलब ये है, ठीक है। AgNO3 का 100 ml में कितना ग्राम्स होगा, 16.9 ग्राम्स। तो अभी तुमको कितना दिया हुआ है 50 ml, तो 50 ml में कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 5 8.45 ग्राम हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई साहब सिल्वर नाइट्रेट का ग्राम्स, ओके। नाउ लेट्स कम टू NaCl। NaCl भी भाई कितना दिया हुआ है, NaCl इधर कितना दिया हुआ है भाई साहब, 5.8% ऑफ 50 मिलीलीटर्स, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे देखो 100 मिलीलीटर्स का कितना होता है, 100 मिलीलीटर्स का होता है 5.8, तो आपका 50 मिलीलीटर्स में कितना होगा, ये दिस विल बी 2 2 4 2 9, ठीक है। तो ये हो गया आपके वेट्स, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट आपने कितना लिया हुआ है 8.45 और सोडियम क्लोराइड आपने कितना लिया हुआ है 2.9 ग्राम्स। अब आते हैं वापस इस इक्वेशन पे, ठीक है, कितना मोल्स हो जाएगा बोलो इसका, हाउ मच वुड बी द मोल्स हियर,
सिल्वर नाइट्रेट का मोल्स, दैट विल बी वेट ऑफ द सब्सटेंस, सिल्वर नाइट्रेट का वेट दैट इज 8.45 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सिल्वर नाइट्रेट का, देखो 107.8 प्लस नाइट्रोजन का है भाई साहब 14 और प्लस ऑक्सीजन है भाई साहब 3 इंटू 16 दैट इज 48। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये कितना हो जाएगा बोलो, सोडियम क्लोराइड का हो गया 2.9 अपॉन भाई साहब सोडियम, सोडियम इज 23, सोडियम प्लस 35.5। ठीक है, चलो भाई साहब इस पे आते हैं, कितना हो गया ये 8.45 अपॉन ये कितना होगा फटाफट, हाँ 189.8 और ये 2.9 अपॉन 3 प्लस 5 8 58.5। इसका कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी, हाँ कितना, नहीं तूने उल्टा किया है, 0.04 इसका, चलिए भाई साहब 0.04 इसका, और इसका ओके तो 0.04, इसका भी उतना ही मोल्स है ना, सेम मोल्स है। और देखो ये कंफर्म भी हो रहा है, AgNO3 है और ये भाई साहब आपका है NaCl, तो इसका भी आपका 0.4 मोल्स। तो आपका ये NaNO3 अभी तक कुछ बना नहीं है, ये स्टार्ट है रिएक्शन का। ठीक है, जब बन जाएगा तो पूरा ही रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके एक मोल के साथ एक मोल रिएक्ट हो रहा है, तो इसके 0.04 मोल्स के साथ 0.04 मोल्स रिएक्ट करेगा, मतलब यहां पे कोई भी कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, अब बताओ भाई साहब यहां पे एट स्टार्ट, ये हो गया भाई साहब एट स्टार्ट, एट एंड मतलब रिएक्शन जब एंड हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका एक मोल से एक मोल यहां पे, एक मोल यहां पे, तो यहां पे कितना प्रोड्यूस होगा बोलो, 0.04 मोल्स इसका प्रोड्यूस होगा और 0.04 मोल्स AgCl का प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, एक मोल एक मोल एक मोल एक मोल 0.04 0.04 स्टार्ट, पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, 0.04 इसका होगा 0.04 इसका होगा, सिंपल सा हिसाब है। ठीक है, ओके, तो अभी तुमसे पूछा है कि भाई साहब कितना, हाउ मच इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो अब पहले तो देख लो भाई साहब 0., हम बोल सकते हैं 0.04 मोल्स ऑफ AgCl एज अ प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब। ठीक है, और एक मोल AgCl का भाई साहब कितना होता है सिल्वर क्लोराइड का, ये हो जाएगा भाई साहब 108 प्लस 35.5, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 0.5 हो गया, ये 8 प्लस 5 हो गया 13, 3 प्लस 1 हो गया 4, 143.5 1 मोल का। ठीक है, तो अभी आपके पास कितना है 1.1 मोल से, है ना भाई साहब, कितना नहीं 0.04 सॉरी 0.04 मोल्स, 0.04 मोल्स ऑफ AgCl का कितना मास हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.04 इंटू 143.5, कितना आ रहा भाई साहब इसका, हाँ 0.04 भाई साहब, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 14, 17, इतना बड़ा डिफरेंस कहाँ से आ गया, .04 मोल्स ऑफ AgCl 143.5, इतना डिफरेंस कहां से आ गया भाई साहब, ठीक है देखना पड़ेगा इसका भाई साहब, 5.74 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 5.74, कायदे से अगर आपको करना होगा तो इसको मार्क कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ये। ओके, विल कीप दिस फॉर लेटर। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास, जेई मेंस का क्वेश्चन है, इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट आर ऑक्सीजन 61.4%, healthy carbon 22.9%, hydrogen 10% and nitrogen 2.6%. The weight which a 75 kg person
वुड गेन इफ ऑल 1H एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूट्रियम एटम्स 2H, कितना वेट गेन हो जाएगा? चलो भाई साहब जल्दी जल्दी जल्दी। देखो कभी कभी ना एग्जाम में कभी कभी क्या ज्यादा करके ही आपको कंफ्यूज ही किया जाएगा, ठीक है? आपको अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जितनी भी चीजें दी हुई ना, मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी नहीं लगेगा। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, दिस इज ऑल, सिर्फ ये वाला चाहिए, ठीक है? दिस इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? लेट्स सी हाउ। ओके, देखो हाइड्रोजन का मास कितना है बोलो? 10%। किसी इंसान का वेट है, मास है 75 kg, जिसमें हाइड्रोजन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 10। तो मतलब 75 का 10% कितना हो गया? हाइड्रोजन, है ना? तो कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे ये हो गया 7.5, ठीक है? 7.5 kg हाइड्रोजन है उस बंदे के बीच में, ठीक है? अभी जब इस हाइड्रोजन एटम को तुम रिप्लेस करते हो किससे? 2H से, तो तुम्हारा ये 7.5 कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 15। मतलब उस इंसान का वेट में कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस इन वेट विल बी हाउ मच? अभी भाई साहब 15 इसके लिए माइनस 7.5, तो ये कितना हो गया? 7.5 ऐड हो जाएगा। मतलब भाई साहब 7.5 kg की बढ़ोतरी होगी उसके वेट में। सो दिस इज द आंसर, ठीक है? एक्चुअली इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है? तो 75 kg% का वेट है, उसका भाई साहब 10% हो गया हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को तुमने रिप्लेस किया किसके साथ? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हाइड्रोजन 2 के साथ, तो तुम्हारा ऑब्वियसली डबल हो गया। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 15 minus 7.5, that is 7.5 kg. Are we clear to this one, people? Thank you so much for your valuable time.